centigrade. Thermophiles, they grow between 45 to 70 degrees centigrade, and hypothermophiles, they grow above 70 degrees centigrade. और इसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी कि जो hyperthermophiles हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ hyperthermophiles, इनका टेम्परेचर है above 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी एग्जांपल थी हमारे पास थर्मस एक्वाटिकस, और मैंने आपको बताया था कि थर्मस एक्वाटिकस जो है इसका बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा की रोल रहा है। क्यों? क्योंकि हम यू नो दैट ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट हियर, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है अयाज? डीएनए पॉलीमरेज 3, ऐसे ही है, डीएनए पॉलीमरेज। एंड ओके, जब हम पीसीआर करते हैं, पीसीआर, दिस इज द पीसीआर, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दिस इज द इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए, और यू कैन से द इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। इसके लिए हमें डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है, ये डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे पीसीआर के अंदर हम टेम्परेचर देते हैं 94 और 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर देता है। इट मींस दैट इफ द टेम्परेचर इज टू हाई एट दैट टेम्परेचर, ह्यूमन पॉलीमरेज कैन नॉट वर्क हियर, क्योंकि ह्यूमन पॉलीमरेज दैट इज working optimally at 37 degrees centigrade. So at that high temperature we will be needing the enzyme that can work at high temperature. तो इसके लिए फिर हम थर्मस एक्वाटिकस से लेते हैं एंजाइम। तो इस एंजाइम का नाम होता है टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज। ओके, ये पीसीआर में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बात हुई थी। और फिर मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों से किया था कि व्हाई कैन सम प्रोकैरियोट्स withstand very high temperature but most cannot, और उसका आप लोगों ने मुझे आंसर दिया था हीट शॉक प्रोटीन्स का और थर्मोस्टेबिलिटी का, एंड दैट अपीयर्स ड्यू टू द प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये बात हुई थी। उसके बाद हमने हैंसन डिजीज और साइफिलिस की बात की थी, और मैंने आपको ये एक इमेज दिखाई थी। एंड नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। Just like the temperature requirement, depending upon the oxygen requirement, we can categorize the microorganisms into 5 classes. One is the obligate aerobes, obligate anaerobe, facultative anaerobes, microaerophilics, and aerotolerant. The obligate aerobes, they have ability or they require, word में work कीजिएगा, they require oxygen to grow. कौन? Obligate aerobes, they require oxygen to grow, but the obligate anaerobes, they cannot grow in the presence of oxygen. It means that they are on the both ends, opposite हैं दोनों एक दूसरे से। Aerobic, they require oxygen for the growth, and anaerobic, they cannot grow in the presence of oxygen. And facultative anaerobe, ये हैं तो anaerobe, but they are facultative, means that they are flexible. They are anaerobe, they grow in the absence of oxygen, but whenever the oxygen is present, they grow happily. So that's why they are called facultative anaerobes. Okay. Third one is the microaerophilic. Micro. They are the aerophilic, they are the aerobic, they require oxygen, but at a very minute quantity. This would be referred as the microaerophilic. And the number 5, that is the aerotolerant. They do not care either oxygen is present or not. Oxygen नहीं है फिर भी ग्रो करेंगे, oxygen present है तो फिर भी अपना मेटाबॉलिज्म ऑक्सीजन पे शिफ्ट नहीं करेंगे. So you can say that they are indifferent to oxygen. They do not care either oxygen is present or not. They are the fermentative organisms. You can say that they are the obligate fermenters. They do fermentation for the production of their energy. Oxygen की क्यों जरूरत पेश आती है organisms के लिए? For the respiration processes as well as for the production and the generation of the ATPs. तो ये जो aerobic organisms हैं, they require oxygen for the production of ATPs, and the obligate anaerobes, they produce the ATP without oxygen. And जो aerotolerants हैं, they do fermentation all the time. They do not इनके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि oxygen is present here or not. Okay. And microaerophilic, they require minute quantity of oxygen. सोए मत जी, पूछें? किसने सर कहा था? हाँ, सर ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे। Are tolerant? They will not use. Because oxygen users जो हैं, जैसे aerobic हैं, they use oxygen, and आपने अगर याद आपको हो electron transport chain, उसके अंदर oxygen molecule is acting as a electron acceptor on the donor acceptor, और उसके रिजल्ट में बस ATP जनरेट होती है पूरी की चेन के बाद. They have alternate mechanisms. They do not need oxygen
as an electron acceptor. So that's why they can produce the energy without the help of oxygen. They are called fermenters, obligate fermenters. They do fermentation all the time, and they are indifferent to the oxygen availability. यहाँ तक बात. अगली बात है this one. अब मेरा आपसे सवाल ये है कि there are many microorganisms which can grow in the presence of oxygen, but there are some other microorganisms which cannot grow in the presence of oxygen. Which cannot grow, इसका मतलब यह है कि they will die in the presence of oxygen. तो ऐसा क्या है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाते? What is toxic in the oxygen that toxin is making them unable to grow in the presence of oxygen? What do you think? What do you think? Why anaerobic microorganisms cannot grow in the presence of oxygen? मेरा सवाल ये है. Why anaerobic microorganisms cannot grow in the presence of oxygen? डेथ हो रही है ना, किल हो रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत से टॉक्सिक चीज है. फिर से कौन बोला? आप बोले. हाँ, ओके. इसका लॉजिक ये है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज से वाकिफ है? ROS reactive oxygen species, for example, nascent oxygen, for example, superoxides. When the aerobic microorganism use oxygen for their metabolism, उसके रिजल्ट में superoxides प्रोड्यूस होते हैं. Superoxides are toxic for the cells. Toxic हैं cells के लिए, specifically for the lipid bilayer. These are toxic for the lipid bilayer. और जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो है एरोबिक, ये क्या करते हैं? दे हैव टू एंजाइम्स. वन इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड नंबर 2 दैट इज द कैटालेज. ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और कैटालेज, ये दो हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म. होता क्या है कि व्हेन सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस, इसके साथ हाइड्रोजन आयन मिक्स होते हैं मैच. यहाँ पे एंजाइम कैटालाइज करता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, और इसके रिजल्ट में हमारे पास बनता है ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड. ये सुपर ऑक्साइड दैट वाज मोर टॉक्सिक, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज लेस टॉक्सिक, बट स्टिल दिस इज टॉक्सिक. सो दूसरा एंजाइम कौन सा? कैटालेज, दैट विल कन्वर्ट दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू water and molecular oxygen. In that sense, ये सुपर ऑक्साइड जो है इनको डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है in water and oxygen with the help of two enzymes. कौन कौन से? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज and catalase. These two enzymes are absent in the anaerobic organisms, so that's why they are unable to grow in the presence of oxygen. Got it? Clear? अब अगला सवाल है, supposing, suppose करें इसको, I have given you an unknown bacteria, unknown sample है, and you do not know either they are aerobic, anaerobic, microaerophilic, aerotolerant. तो आप कैसे find out करेंगे? To find out the oxygen requirement of bacteria, we have a test that is called shake tube test. यहाँ हम इसको कहते हैं shake tube method. SHAKE, shake tube method. ठीक है, shake tube method में क्या करते हैं? We prepare the agar को हम टेस्ट ट्यूब में पोर करते हैं, अननोन बैक्टीरिया को उसके अंदर इनोकुलेट कर दिया, टेस्ट ट्यूब को शेक किया अच्छे से और टेस्ट ट्यूब को इनक्यूबेट कर दिया. इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाज एरोबिक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ आएगी अपर लेयर्स पे जहां पे ऑक्सीजन मैक्सिमम है, यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ आएगी इधर. अगर ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है हियर, तो ग्रोथ हमारे पास यहाँ पे आएगी लोअर लेयर में. अगर एनारोबिक है तो उसमें देखें, उस फिगर में. ठीक है, अच्छा, अगर एरोबिक है तो ग्रोथ विल बी एट द अपर लेयर,
अगर एनारोबिक है तो ग्रोथ विल बी आर लो लेवल, अगर माइक्रो एरोफिलिक है तो ग्रोथ सेंट्रल एरिया में आएगी जहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी माइन्यूट है। और अगर फैकल्टेटिव है, यू नो दैट फैकल्टेटिव कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास ग्रोथ पूरी ट्यूब में आएगी, ये वाली फैकल्टेटिव, ठीक है। और अगर हमारे पास एरो टॉलरेंट है, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो उनकी ग्रोथ भी पूरी टेस्ट ट्यूब में आएगी। अब अगर आप इसको थोड़ा डिटेल से देखें तो ऑब्लिगेट एरोब्स जो हैं, दे हैव टू एंजाइम्स, कैटालेज एंड सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, और ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा है जो मैंने अभी बना के आपको दिया। उसके बाद आते हैं एनारोब। एनारोब्स के पास ना कैटालेज है ना सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज है, जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद आते हैं हमारे पास माइक्रो एरोफिलिक, they can grow in the minute quantity of oxygen, so they will be having small amount of catalase and superoxide dismutase, okay। अब आते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, इनके पास कैटालेज होते हैं, इनके पास सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज भी होते हैं, इसीलिए तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हैप्पीली ग्रो करते हैं। और तीसरे हैं एरोटॉलरेंट। एरोटॉलरेंट में सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज होता है सिर्फ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपने ग्रोथ देखी है तो ग्रोथ पैटर्न जो है वो एरो टॉलरेंट का और फैकल्टेटिव एनारोब का तो सेम है, सिमिलर है ये वाला। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि इस ग्रोथ पैटर्न के बाद आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एरो टॉलरेंट है या फैकल्टेटिव एनारोब है? एनी आइडिया? जी you have टेस्ट ट्यूब, सिमिलर ग्रोथ है दोनों में, एरो टॉलरेंट में और फैकल्टेटिव एनारोब्स में। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि दोनों में से फैकल्टेटिव कौन है और एरो टॉलरेंट कौन है? एनीवन? By removing oxygen supply, नहीं, this is not a valid answer. Any other idea? देखें, ये तो एक स्टेप था, इस एक स्टेप में 5 कैटेगरीज में हमारे पास 3 तो डिफरेंशिएट हो गए, मसला रह गया 2 में। इसके लिए अब हम एक टेस्ट मजीद परफॉर्म करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैकल्टेटिव एनारोब जो है इसमें कैटालेज भी और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज भी है, लेकिन एरो टॉलरेंट में कैटालेज नहीं है। तो वी विल परफॉर्म अनदर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कैटालेज। इफ द ऑर्गेनिज्म इज कैटालेज पॉजिटिव, इसका मतलब है कि वो फैकल्टेटिव एनारोब होगा। अगर कैटालेज नेगेटिव है तो एरो टॉलरेंट होगा। गॉट इट? तो कैटालेज की प्रेजेंस एक्चुअली इसको डिटरमिन कर रही है कि व्हाट इज द कैटेगरी इन इट। चलें, सही है। और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमने डिस्कस कर ली है। द नेक्स्ट वन दैट इज द पीएच अवेलेबिलिटी एंड द पीएच। यस सर, इन एरोब्स में ऑक्सीजन की पीएच, और अगर हम देखें तो जो न्यूट्रोफाइल्स हैं इनकी पीएच रेंज है दैट वेरीज फ्रॉम 5 to 8। एसिडोफाइल्स दे कैन ग्रो बिलो 5.5 and alkalophiles they grow optimally at the pH that is above 8.5 and so that's why they are called alkalophiles. अब थोड़ी सी इसके हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि जो एसिडोफाइल्स हैं they are growing in the acidic environment. Acidophiles, they are growing in the acidic environment, but most of the acidophile they have their internal pH at neutral. I repeat my words. Acidophiles normally they grow in the acidic environment, but their cytoplasmic or the internal pH that is around neutral because they have proton pumps. ये जो you know that pH is the measure and the negative log of the protons and जब acidic environment है इसका मतलब है कि बाहर प्रोटॉन ज्यादा हैं, वो सेल के अंदर मूव करेंगे and cells has the proton pumps. Cell will remove out the protons and in that manner cell will keep the internal pH at neutral. अगर से वो ग्रो कर रहा है acidic environment में बट उसकी internal pH neutral है। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, नाम सुना है इसका? हेलिकोबैक्टर, दिस इज अ बैक्टीरिया।
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस वन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, आपने नाम सुना है इसका? This is the causative agent for the stomach ulcers. This one, stomach ulcers cause करता है. And you know that the environment of stomach is bit acidic. But मजे की बात यह है कि Helicobacter pylori neutrophile है. It is neutrophile, but that is growing in the acidic environment. एक मैकेनिज्म हमने प्रोटॉन पंप वाला पढ़ा. दूसरा जो इस केस में है Helicobacter pylori के केस में वो ये है, it has the enzyme that is named as urease. Urease enzyme has ability to break down the urea. यहाँ पे मैं लिखूं the urea that would be urease enzyme that will be broken into carbon dioxide and ammonia. ठीक है? And this ammonia that will neutralize the acidic pH around the Helicobacter pylori. स्टमक की वॉल पे जहां पे Helicobacter pylori ग्रो कर रहा होगा वो वहां पे अमोनिया प्रोड्यूस करा रहा होगा और अमोनिया जो है वो उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करेगा जिसकी वजह से Helicobacter pylori की विसिनिटी में न्यूट्रल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और Helicobacter would be easy for it to grow there. This is another mechanism. इसके अलावा एसिडोफाइल्स की हमारे पास बड़ी कॉमन एग्जांपल है एसिडोथायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस एंड ये 2 pH पे ग्रो कर सकता है हमारे पास pH 2 that is very minimum pH and this is successful to grow at the pH 2 and it has ability to oxidize the sulfur compounds and ये सल्फर कंपाउंड ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक एसिड्स बनाता है और अपनी जो सराउंडिंग है उसकी pH ड्रॉप कर लेता है. एक और ऑर्गेनिज्म कुछ साल पहले डिस्कवर हुआ पाइक्रोफाइलस बुशेमे that has ability to grow at the pH 1. This is the minimum non pH up to date maybe जो जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रिपोर्टेड है. इसके अलावा अल्कैलोफाइल्स की एग्जांपल है बैसिलस अल्कैलोफिलस and that can grow up to the pH 10.5 और इसका जो मैकेनिज्म है that is ability to exchange the protons with the sodium ions. तो इसके अंदर प्रोटॉन सोडियम पंप्स हैं जो कि प्रोटॉन्स को पंप आउट करके या पंप इन करके सोडियम के साथ एक्सचेंज करके that has ability to maintain the internal pH the neutral. These were the examples. Okay? अच्छा, अब थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स की जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि ऑब्लिगेट एरोब्स की एग्जांपल. The most common example for obligate aerob that is the Micrococcus here, this one, and obligate anaerobes, these are the bacteriides, and Clostridium botulinum. Clostridium botulinum, that is an infectious organism and this is the causative agent for botulism. Botulism सुना है जी? Botulism, this is a disease, kind of food poisoning, botulism. और Clostridium botulinum जो है ये toxin produce करता है, meat products spoil होती हैं इससे. इसके अलावा the facultative anaerobes, they are the E. coli and you know that E. coli are the enteric bacteria, they grow into the gut. ठीक है? And microaerophilic which can grow from 2% to 10% availability of the oxygen और उसकी example है Helicobacter pylori and Helicobacter pylori normally grows where? Stomach. और aerotolerant bacteria इनकी aerotolerant anaerobes they are the Streptococcus pyogenes इसकी common example है और Streptococcus pyogenes they are the common cause of the sore throat or the strep throat. जो throat का normal flora है वो Streptococcus है और Streptococcus pyogenes ये pathogen है which cause the infection in the throat. इसको जरा ज़हन में रखिएगा Streptococcus pyogen को, आगे इसकी मज़ीद डिटेल आएगी तब मैं आपसे पूछूंगा कि Streptococcus pyogen किस कैटेगरी में हमने पढ़ा था. ओके और इसके बाद ये 2 एंजाइम्स के हम पढ़ चुके हैं सुपरऑक्साइड डिस्मूटेज एंड द कैटालिसिस. यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई कंफ्यूजन हो, he or she सक्सेसफुली इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन से ग्रो कर सकें. किस बात की कि कैसे मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ये है कि वाटर अगर हाई कंसंट्रेशन में ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है, प्लाज्मोलिसिस होती है, सेल की डेथ हो जाती है. लेकिन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ये हेलोटॉलरेंट है, ये 10% NaCl पे भी ग्रो करते हैं, तो फिर ये कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि इनके पास एक मैकेनिज्म है कि ये इंट्रासेलुलर यहाँ पे सेल के अंदर ही कुछ सॉल्ट्स कुछ रिएजेंट्स को सिक्रीट करते हैं. अब इन सॉल्ट्स की सिक्रीशन के रिजल्ट में जो इंटरनल वाटर कंसंट्रेशन है
वो हाई नहीं रहती, वो ड्रॉप आउट कर जाती है, क्योंकि अब सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी ना इंटरनल साइड पे। अच्छा, इस वजह से पानी आउटफ्लो नहीं कर सकता, है अंदर ही वाटर, आउटफ्लो नहीं कर सकता, एंड दे आर प्रोटेक्टिंग, एक्चुअली दे आर प्रोटेक्टिंग द वाटर टू कम टू गो आउट ऑफ द सेल। In that respect, they are protecting the water and they are avoiding the shrinkage of the cell, and this mechanism is making them comfortable to grow at the high concentration of the salts, and so that's why they are termed as halotolerant and halophiles. ठीक है जी। नॉर्मली जहाँ पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है वहाँ पे पानी बाहर होता है, जैसे डेड सी में या डेड लेक ऑफ यूएसए, या जो मैंने एग्जांपल्स पहले दिए उस टाइम पे, तो बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन है इतनी कि पानी पानी जो है हाई कंसंट्रेशन से लोअर मूव करेगा, तो बाहर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इतनी है कि पानी वहाँ से मूव ही नहीं कर सकता, सेल के अंदर से बाहर निकलेगा। तो फिर सेल क्या करता है कि अपने अंदर भी सॉल्ट कंसंट्रेशन इनहैंस कर लेता है, दोनों बराबर हो गए तो पानी बाहर से अंदर से बाहर नहीं आएगा। दिस इज द रीजन। ज्यादा हाइपरटोनिक अंदर कंडीशन होगा तो ज़्यादा हाइपरटोनिक नहीं होगा, सेल जो है वो वहाँ पे हमारे पास NaCl नहीं प्रोड्यूस कर रहा, सर्टन अदर केमिकल रिएजेंट्स प्रोड्यूस करेगा, जो सिर्फ ये एक मैसेज डिलीवर होगा, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दैट इज इक्वल इनसाइड और आउटसाइड, सो वाटर विल नॉट मूव। इसके अलावा सेल्स के पास प्रोटॉन पंप्स हैं, यहाँ पर सोडियम पंप्स हैं, तो ये उन पंप्स के साथ भी आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करता रहता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ज़ैन अगर दुखी लगेगा बड़े, अच्छा तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा गुड। So this was the physical requirements of the bacterial growth, and physical requirements के बाद जो अगला हमारे पास है, these are the nutritional requirements and the nutritional factors which can influence the growth of the microorganisms, and इसमें हमारे पास required elements हैं, they make carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, phosphorus, potassium, magnesium, calcium and iron, ये हमारे पास microorganisms growth के लिए necessary हैं। microorganisms को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। वन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स एंड नंबर टू दे आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स दे कैन यूज द inorganic carbon, and the heterotrophs they can only use the organic carbons. You know that inorganic carbon जो यूज करते हैं, यानी जो heterotrophs हैं, इनको हम कार्बन फिक्सर भी कहते हैं, they can fix the carbon into the organic compounds. इसके अलावा नाइट्रोजन fixation that is a unique property that microorganisms, the bacteria, they have, and they fix the atmospheric nitrogen into nitrates and nitrites. इसके रिजल्ट में जो plants या photosynthetic bacteria या photosynthetic organisms, and they use that, and they other than that they cannot use the atmospheric oxygen. अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल द फास्फोरस एंड आयरन, इनको लिमिटिंग क्यों कहते हैं इसमें बात होगी। देयर आर सर्टेन अदर एलिमेंट्स which are required by the cell in the trace quantity, trace amount। उसमें हमारे पास आते हैं the zinc, copper, manganese, certain जो कि एज ए कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम एक्ट करते हैं, और ये हमारे पास ट्रेस एलिमेंट में ही रिक्वायर होते हैं। अदर देन these elements, हमें growth factors required है micro organisms के लिए। What are the growth factors? They are the low molecular weight compounds which are required by a particular bacterium, not by all the bacteria. सारे के सारे bacteria को growth factors नहीं require, but the bacteria which require some other low molecular weight compounds, they are termed as fastidious organisms. क्या कहते हैं? Fastidious. Fastidious. Fastidious organisms. You can say that the fastidious organisms, they have high requirements of the nutrients to grow, because they require all of these nutrients as well as some growth factors. ठीक है, तो these are low molecular weight compounds and growth factors, और वो organisms जिनको चाहिए हैं, and they may be termed as। अब अगला सवाल है कि इन representative organisms के function क्या है? Carbon, oxygen and hydrogen, why they are required? Carbon, oxygen and hydrogen, they are required as a cell, because they are cell constituents of the amino acids, lipids, nucleic acid and sugars, CHO। तीनों amino acids में भी हैं, lipids में भी हैं, nucleic acids में भी हैं, sugars में भी हैं। Why nitrogen is required? Nitrogen is a component of amino acids as well as nucleic acid. You know that nitrogen is bases, okay? इसके अलावा sulfur is a component of amino acid। कौन से amino acid हैं जिनमें sulfur होता है? बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना आप लोगों ने? गुड, बायोकेमिस्ट्री 1 भी पढ़ी है, 2 भी पढ़ी है।
कौन से ऐसे अमीनो एसिड हैं? 2। मैंने अमीनो एसिड के नाम पूछे, डाइसल्फाइड ब्रिजेस नहीं पूछे मैंने। अमीनो एसिड का नाम बता दें, एक का नाम बता दें जिसके अंदर सल्फर एज अ कंपोनेंट प्रेजेंट है। सिस्टीन। कौन बोला बच्चे? कौन? आप अपना नाम प्लीज बता दें। अतीका सर मिनाहिल। ओके, यू आर राइट, दिस इज द राइट आंसर। आपने बायोकेमिस्ट्री किससे पढ़ी थी? सबने? मैं जाके बताता हूँ और फिर वो आपका खुद ही इलाज करेंगे या करेंगी, मैडम होगी बायोकेमिस्ट्री मैडम। ओके, बहरहाल चीजें याद रखें। एंड सिस्टीन एंड सिस्टाइन, इन द सिस्टाइन देयर आर डाइसल्फाइड ब्रिजेस एंड बिटवीन टू सिस्टीन। ऐसे ही है यार? गुड। I hate biochemistry but still I know that. आप लोगों को तो अभी पढ़ रहे हैं, कोई चीज नहीं भाई, ये इस तरह ना करेगा। कल अगले सेमेस्टर में माइक्रो नहीं आएगी तो मेरे लिए बनेगा मसला, ये तो काम खराब है। The phosphorus, why it is required? You know that phosphorus is the component of the nucleic acids as well as certain membrane lipids. They have the phosphorus as ATP. Most importantly, potassium, magnesium, and calcium, they are required by the enzyme for the proper functioning. और आयरन में हमारे पास पार्ट ऑफ आयरन इज अ पार्ट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। हीम ग्रुप का तो इशू हमारे पास एनिमल्स में आएगा इसमें, ठीक है? आयरन दिस वन। अब अगर इसको इसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, फर्स्ट में हम देखेंगे द फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म। आई हैव टोल्ड यू द फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म देयर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स आर हायर, जिनके ग्रो करने के नखरे थोड़े ज्यादा हैं। वी हैव टू ऐड सम growth factors along with the nutrients which are required for that. अच्छा, अब ये जो fastidious organisms हैं, they are very much important. Consider ये किया जाता है कि जो ज्यादातर human pathogens हैं, they are fastidious because they grow on the human and the human blood is enriched with the nutrients. Fastidious organisms, they can be used to measure the presence of any vitamin in the food. कैसे? कोई बता सकता है? यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट लिखी है, fastidious organisms they can be used to measure the vitamin presence of vitamin in the food. थोड़ा एक्सप्लेन करें आप, ठीक कह रही हैं, जरा सीरियस वे में बात करें, सही कह रही हैं आप। यस, organisms को ये vitamins के लिए growth के लिए और your part of it उसमें ज़्यादा। For example, you're right. For example, you're right, but partially. For example, if a company is claiming that they have a product, और उनकी प्रोडक्ट में they are claiming कोई विटामिन मौजूद है, for example B12, मिसाल है। हमारे पास एक fastidious organism है, हमारे पास एक fastidious organism है and it require B12 for its growth, तो हम क्या करेंगे? इसको इस पे ग्रो कर देंगे, बाकी न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें इस प्रोडक्ट में, और B12 ना ऐड करें। अगर तो ये fastidious organism में ग्रो कर गया, it means that this is present because microorganism require B12 for its growth. It cannot grow without B12. It means that this food product that may contain the vitamin. मैं बात कर रहा हूँ कि fastidious organism जो हैं, इनको ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है विटामिन से। अगर आपके पास आप क्लेम कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर विटामिन B12 मौजूद है, आप उसको चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि मीडिया बनाएं, मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें, B12 ऐड ना करें और B12 की जगह ये प्रोडक्ट ऐड करें जिसमें क्लेम कर रहे हैं ना, तो B12 है। अगर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इस पे आ जाती है तो इसका मतलब B12 था, अगर नहीं आती तो इसका मतलब नहीं था। तो fastidious organisms they can be used to measure the presence of vitamins in the foods. Got it? आगे एक चीज है this one. So the autotrophs they can categorize into two groups, photoautotrophs and chemolithoautotrophs. और जो हेटरोट्रॉफ्स हैं इनको फोटोहेटरोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑर्गेनोहेटरोट्रॉफ्स दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं जो हमारे पास ये इनऑर्गेनिक कार्बन यूज करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ और ये ऑटोट्रॉफ, ये दे यूज इनऑर्गेनिक कार्बन, दोनों देखें कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है। अब चूंकि ये फोटो है, दे विल यूज द एनर्जी सोर्स फ्रॉम द सनलाइट। ये कीमोलिथो हैं, they will use the energy from the inorganic chemicals
इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ब्रेक करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी एंड इस एनर्जी को यूज करेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। ओके, हेटेरोट्रॉफ्स हैं तो ये ऑर्गेनिक कार्बन यूज करेंगे, दिस वन एंड दिस वन दोनों। अब ये अगर फोटो है तो एनर्जी सोर्स सनलाइट होगा डेफिनेटली, और अगर कीमो है तो एनर्जी सोर्स जो है वो केमिकल कंपाउंड्स होंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस केस में, एंड दीस आर द शुगर्स, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा। So heterotrophs and autotrophs, they can further be categorized into two groups: photo and chemo, autotrophs and heterotrophs. Got it? Good. Okay. पहले बता देते हैं मुझे। ठीक है जी, photo autotrophs they are termed as a primary producers and इनकी एग्जांपल है cyanobacteria, बहुत कॉमन एग्जांपल है cyanobacteria, और जो chemolithotrophs हैं they are also termed as a chemoautotrophs, और ये ऐसे एनवायरनमेंट को ग्रो करते हैं नॉर्मली विच आर सीमिंगली इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट्स, जिन पे हमें लगता है कि ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल सल्फर हॉट स्प्रिंग्स, द डीप ओशन में जो प्रेजेंट है सल्फर हॉट स्प्रिंग्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ये कीमोलिथोट्रॉफ्स मौजूद हैं, चूँकि ये एनर्जी देते हैं लिथो मीन डॉग्स, और ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको ब्रेक करके एनर्जी देते हैं। They have ability to grow at the sulfur hot springs which are present in the deep ocean। और इसके अलावा जो फोटो हेटेरोट्रॉफ्स हैं इनको सनलाइट चाहिए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए ग्रोथ के लिए, और इसकी हमारे पास एग्जांपल है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और रोडोबैक्टर। तो इसमें जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया हैं दे कैन ग्रो एनारोबिकली in the presence of light and organic compounds, but the rhodobacteria जो हैं ये करेंगे ग्रो एरोबिकली। बोथ ऑफ देम आर फोटो हेटेरोट्रॉफ्स। रोडोबैक्टर एरोबिकली ग्रो कर रहे हैं और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो है ये एनारोबिकली ग्रो कर रहे हैं। फोटो हेटेरोट्रॉफ है तो फोटो दोनों को लाइट चाहिए होगी, हेटेरोट्रॉफ में दोनों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स चाहिए ग्रो करने के लिए। इसके अलावा कीमो ऑर्गेनो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, इनको कीमो हेटेरोट्रॉफ्स भी कहते हैं। इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए फॉर द एनर्जी। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है सुडोमोनास एंड बैसिलस फैस्टिजियस। ओके, these are the two examples here। रॉक, लिथो रॉक, और वो हमने बात की है कीमो लिथो ऑटोट्रॉफ्स। they grow at the places where the rocks of the inorganic compounds are present। for example अगर मैं आपको ये टेबल दोबारा से दिखाऊं, कीमोलिथोट्रॉफ्स इसके अंदर अमोनिया, फेरिक आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इनको यूज करते हैं अपने एनर्जी के लिए। हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर एग्जांपल लें तो ये ऑर्गेनिज्म अगर सल्फर हॉट स्प्रिंग्स में ग्रो कर रहे हैं तो वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्रेजेंट। दे विल टेक द हाइड्रोजन सल्फाइड, ब्रेक इट, they will take the energy from the breakdown of hydrogen sulfide, and then they will fix the carbon dioxide which is inorganic carbon into organic carbon। okay, good। okay जी, इसको 2 मिनट देख लें। I will take a short break here। आपको थोड़ा सा इसमें चेक करने जा रहे हैं। पहले हमने जनरल रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, दे नीड टू ग्रो। अब अगर हम इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब में ग्रो करवाते हैं तो लैब में ग्रो करवाने के लिए इसका मतलब है कि वो जो रिक्वायरमेंट अभी हमने पढ़ी है हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वी प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ द मीडियम। हमने पढ़ा था एगर मीडियम, एनबी ब्रॉथ, एलबी ब्रॉथ, एगर। तो मीडियम एक्चुअली ये मीडियम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द कॉम्प्लेक्स मीडिया एंड नंबर 2 दैट इज द केमिकली डिफाइंड मीडिया। फॉर एग्जांपल हियर, वेयर इज माय कर्सर, this is the complex media and this is the chemically defined media। complex media that is actually having all the compositions but we do not know the exact ratios। chemically defined media में हमें पता है कि नाइट्रोजन है तो कितने परसेंट है, कार्बन है तो कितने परसेंट है, बट कॉम्प्लेक्स मीडिया में हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ऐड की है but we are not sure about the exact concentration, so that's why that is termed as complex। और दूसरा जो केमिकली डिफाइंड है उसमें जो नाइट्रोजन, कार्बन, मैंगनीज, आयरन सब की केमिकली डिफाइंड कंसंट्रेशन हमने सेपरेट ऐड की है। लेकिन कॉम्प्लेक्स मीडिया के अंदर हमने पेप्टोन ऐड कर दिया। पेप्टोन इज द सोर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, शॉर्ट पेप्टाइड, एंजाइम्स, ये मिक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐड कर दिया। तो यू कैन से दैट द कॉम्प्लेक्स मीडिया दैट इज एक्चुअली अ टेस्टी सूप for the microorganisms containing all the required nutrients that it can grow on that। इसमें हमारे पास पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट है। beef extract is the
और वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीन मीट। लीन मीट क्या होता है? लीन मीट, लीन, यस, अगर हम बोनलेस मीट के लीन पीसेस बनाए, लीन कहते हैं उसको, शायद उर्दू में कहते हैं पार्चा जात, पता नहीं, हाँ, थिन लेयर्स, यस, दिस इज द राइट वर्ड, लीन पीसेस। तो लीन पीसेस को ड्राई किया जाता है, ड्राई करने के बाद उनका वाटर में एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, और दिस इज एक्चुअली द बीफ एक्सट्रैक्ट एंड दैट कंटेन्स द विटामिन्स, मिनरल्स, एंड इसके अलावा कुछ अदर सप्लीमेंट्स भी ऐड किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉर्न स्टार्च ऐड किया जा सकता है फॉर द कॉर्न स्टार्च ऐड किया जा सकता है, दैट बाइंड्स विद द फैटी एसिड्स, एंड जो कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे पास उसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ आता है, दिस इज द टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स मीडियम, और इसमें साथ साथ ब्लड एगर है, ब्लड एगर बड़ी कॉमन एग्जांपल है फस्टिडियस ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाने के लिए। और ब्लड एगर जो है, इसमें इस एगर में हम ब्लड ऐड करते हैं। आपने लैब में कभी बनाया ब्लड एगर? हम आपको मैंने उस दिन बताई थी, न्यूट्रिएंट एगर की रेसिपी बताई थी, यहाँ पे लिखी थी मैंने, याद नहीं है? पेप्टोन लिखा था, बीफ एक्सट्रैक्ट लिखा था, NaCl लिखा था, वाटर लिखा था, रिमेंबर? ओके, दिस इज कॉल्ड द बेस, इसको हम कहते हैं बेस। ये नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए तो इनफ है, बट व्हेन यू नीड टू ग्रो द फस्टिडियस ऑर्गेनिज्म, यू नो दैट दे रिक्वायर ग्रोथ फैक्टर्स, यू हैव टू ऐड द ग्रोथ फैक्टर्स। खास तौर पे अगर हम ह्यूमन पैथोजेंस को ग्रो करने लगे हैं तो उसके लिए हम इसके अंदर ब्लड ऐड करेंगे। हाँ, वही बना रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना, ये बेस बना के, जिस तरह हम नॉर्मल लैब के अंदर मीडिया बनाते हैं, बना के उसको ऑटोक्लेव करके, ऑटोक्लेविंग के बाद उसको कूल डाउन करना है कोई 50 डिग्री पे। आपको पता है कि 45 से बिलो वो सॉलिड हो जाएगा, तो आप 50 तक उसको करेंगे, फिर उसके अंदर ब्लड ऐड करेंगे। अब ब्लड जो है दैट इज इनरिच्ड विद द न्यूट्रिएंट्स, सीरम, इसके अंदर हार्मोन्स हैं, इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, सो दैट कैन बी द सोर्स टू ग्रो द ह्यूमन पैथोजेंस। हो सकता है। अच्छा, अब इसमें हम ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है दैट इज हेमन, and hemin is actually the enriched growth factor which is required by the microorganisms. अगला है इसके अंदर चॉकलेट एगर। इसमें चॉकलेट बिल्कुल ऐड नहीं करते, डोंट थिंक लाइक दैट। इसमें हम चॉकलेट बिल्कुल ऐड नहीं करते। ये जो ब्लड एगर की प्लेट है, ब्लड एगर की प्लेट्स बन गई। अब उस ब्लड एगर की प्लेट को हाई टेम्परेचर पे रख दें, हाई टेम्परेचर मतलब 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दें, तो ब्लड जो है वो हीमोलाइज हो जाएगा। जब ब्लड हीमोलाइज्ड होगा तो वो चॉकलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। So that's why due to this color this is called chocolate agar। और chocolate agar जो है this is more enriched as compared to blood agar। ये क्वेश्चन है मेरा आपसे कि चॉकलेट एगर के अंदर और कुछ नहीं ऐड हुआ, हमने सिर्फ उसको हीमोलाइज करवा दिया हाई टेम्परेचर पे। और दूसरी मैंने स्टेटमेंट दे दी कि चॉकलेट एगर इज इनरिच्ड विद द न्यूट्रिएंट्स as compared to the blood agar। How? जी फिर से ऊंची बोलेगा ना। Yes, when the hemolysis occurs, the red blood cells are hemolyzed and their nutrients will release out। So now the chocolate agar है, this is more enriched and the more nutrients are available to grow the microorganisms। So this is the chocolate agar। This chocolate agar, blood agar, nutrient broth and the nutrient agar, these are the examples for the chemically defined these are examples for the complex medium। Okay, and the chemically defined medium में हमारे पास आता है plant tissue culture का medium आता है, या इसके अलावा हमारे पास there are certain other chemically defined medium जिसके अंदर हम इस तरह से पेप्टोन या बीफ एक्सट्रैक्ट नहीं डालते। उसमें हम अलग से नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस की अलग अलग क्वांटिटीज, डिफाइंड क्वांटिटीज डालते हैं। सो दैट वाज दिस इज कॉल्ड केमिकली डिफाइंड मीडियम। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द मीडियम। आगे हम इसको मजीद स्पेसिफाई करते जाएंगे, आगे डिफरेंट टाइप्स आएंगी, सिलेक्टिव मीडियम, डिफरेंशियल मीडियम, ये ब्लड एगर की प्लेट्स आएंगी, फिर इसके बाद ये मिकान की एगर आएगा। मुझे ये नहीं पता कि इसमें एक्सपेरिमेंट्स में कौन से एडेड हैं, बट स्टिल I can expect। Yes, Sir, yes, the high temperature